ભૂપેન્દ્રભાઈ રજનીકાંત પટેલ, નમસ્કાર, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતી ચર્ચા નિર્ણયમાં સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, છેલ્લા કેટલાય સમયથી જેની રાહ જોવાઈ રહી હતી એ દિવસ આવી ગયો અને આજે આખરે હાર્દિક પટેલ ભાજપમાં સત્તાવાર રીતે જોડાઈ ગયા. હાર્દિક પટેલે કેસરિયા કરી લીધા, હાર્દિક પટેલે કેસરી ખેસ પહેરી લીધો, હાર્દિક પટેલે કેસરી ટોપી પહેરી લીધી અને જે વાતો કરી એ વાતોથી લોકોને પણ આંજી દીધા. પરંતુ એક વસ્તુ ચોક્કસ છે કે હાર્દિક પટેલ જે 2015માં પાટીદાર અનામત આંદોલન ચાલુ થયું એમાં જે સમિતિ બનાવી હતી એના કન્વીનર હતા અને યુવા નેતા હતા. 22 વર્ષની ઉંમરે એ યુવાને જે પ્રકારનું આંદોલન કર્યું અને આખા ગુજરાતના પાટીદાર સમુદાયમાં એની વાહવાહી થઈ ગઈ અને જે પ્રકારનું જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડમાં લોકોનો સમુદાય, ભીડ, પાટીદારોની ભીડ એટલી બધી ઉમટી અને જે પ્રકારનું આંદોલન થયું, જે પ્રકારના ધરણા કર્યા અને જે પ્રકારની માગણીઓ રાખી તેના કારણે સરકાર પણ વિમાસણમાં મુકાઈ ગઈ. તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલે પણ અનેક વખત રિક્વેસ્ટ કરી કે આ બધા આંદોલન બંધ કરી શાંતિથી ચર્ચા વિચારણા માટે આવો, પરંતુ તે માન્યા નહીં, પાટીદારો માન્યા નહીં. હાર્દિક પટેલે પણ જીદ પકડી કે મુખ્યમંત્રી જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડમાં આવે, અમારું આવેદનપત્ર સ્વીકારે અને પછી અમે અહીંથી વિદાય થઈશું, ત્યાં સુધી અમે નીકળવાના નથી. અને એ પછી જે ઘટનાઓ ઘટી એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ, ગુજરાતની જનતા જાણે છે, દેશ આખો જાણે છે કે એ પછી શું થયું. તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલને ફેસબુક ઉપર રાજીનામું આપવા મજબૂર થવું પડ્યું અને જે પ્રકારે સરકાર બદલાઈ અને પછી જે કેસ થયા પાટીદાર આંદોલન સમિતિના જે નેતાઓ હતા, આંદોલન કરનારા હતા, એ તમામ ઉપર કેસ થયા. 2015માં કેસ થયા, 2015માં કેસ થયા ત્યારથી પાટીદાર સમુદાય આ બધા કેસ પાછા ખેંચવાની માગણી કરતા હતા. હાર્દિક પટેલ સામે પણ અનેક કેસ થયેલા. હાર્દિક પટેલે ભાજપને, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને, તમામ નેતાઓને, ગુજરાતના તમામ નેતાઓને બેફામ નિવેદનો કરીને ખૂબ જ આક્ષેપો કર્યા અને ગંભીર આક્ષેપો કર્યા અને બેફામ આક્ષેપો કર્યા. તેમ છતાં પણ છેવટે ભાજપે તેમને 2 જૂન 2022ના રોજ પોતાને પાર્ટીમાં સ્વાગત કર્યું, એમને પાર્ટીમાં સમાવી લીધા, પ્રાથમિક સભ્યપદ આપી દીધું અને આવનારી 2022ની ચૂંટણીમાં કદાચ ટિકિટ પણ આપે એવી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે. કદાચ એટલા માટે કહું છું કે ભાજપનું નેતૃત્વ છે એ તમામ પાસાઓ વિચારીને પછી નિર્ણય લેતા હોય છે. તો જે રીતે હાર્દિક પટેલ ભાજપમાં જોડાયા અને જે પ્રકારે કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપ્યું અને પછી જે પત્રકાર પરિષદ કરી એમાં જે આક્રોશ હતો, જે ગુસ્સો હતો કોંગ્રેસ ઉપર, અને આજે જ્યારે ભાજપમાં સત્તાવાર રીતે જોડાયા, ખેસ પહેર્યો, CR પાટીલના હાથે, નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલના હાથે ટોપી પહેરી અને આ જ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલના વિરોધમાં પણ અનેક નિવેદનો કર્યા. તેમ છતાં આજે નીતિન પટેલે મોટું દિલ રાખીને તેને ટોપી પહેરાવી ભાજપની, CR પાટીલે પણ મોટું મન રાખીને તેને ખેસ પહેરાવી સ્વાગત કર્યું, હાર્દિક સ્વાગત કર્યું. અને ત્યાર પછી જે પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં હાર્દિક પટેલે શું કહ્યું આવો પહેલાં સાંભળીએ. આંદોલન દરમિયાન અનેક ચડાવ ઉતાર પણ જોયા અને આ ચડાવ ઉતારના 4 વર્ષના સમયગાળામાં 2019ના જાન્યુઆરી મહિનામાં ભારતના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા લોકસભા અને રાજ્યસભામાંથી 10% EBC અનામતનો ઠરાવ કરાવીને, કાયદો પસાર કરીને માત્ર ગુજરાતના પટેલ સમાજ નહીં પરંતુ ગુજરાતના તમામ બિન વર્ગમાં આવતા સમાજને 10% આર્થિક ધોરણે અનામત મળી અને ગુજરાત બહારના પણ અનેક રાજ્યોની અંદર બિન અનામત વર્ગના સમાજને 10%નો લાભ મળ્યો. એ પછી જનહિતમાં કંઈક સારું કામ થાય એ ભાવના સાથે કોંગ્રેસ પાર્ટીની અંદર જોડાયા. કોંગ્રેસ પાર્ટીની અંદર રહીને
જે અનુભવ કર્યા, જે જનતાની વિરુદ્ધ, જનતાની ભાવનાઓની એકદમ અલગ રહીને જે કોંગ્રેસ કામ કરતી હતી એનાથી દુઃખી થઈને જ્યારે જ્યારે દેશ અને જનતા કે ધર્મની ભાવનાઓ સાથે જોડાયેલા મુદ્દા હોય ત્યારે ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટીના એક પણ નેતાએ જનતાની ભાવનાઓ સાથે ઊભું રહેવાનો પ્રયાસ ન કર્યો. એ બાદ અનેક ચર્ચાઓ પાર્ટીની ભીતર કરી, પાર્ટીની અંદર કરી, પણ ક્યારે પાર્ટી તરફથી કોઈ સારો પ્રતિભાવ, કોઈ સારી મદદ, જનતાના હિત માટે સાથે ઊભું રહ્યું, આના માટે કોઈ પણ પ્રકારનું કામ ન કર્યું. અને એ જોતા કોંગ્રેસ પાર્ટીના સામાન્ય પદ પરથી પણ કાર્યકર્તાના પદ ઉપરથી રાજીનામું આપ્યું. જ્યારે હું કોંગ્રેસનો હોદ્દેદાર હતો ત્યારે પણ ભારતના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈએ 370 ની કલમ દૂર કરવાની વાત હોય, રામ મંદિર બનાવવા માટેનો મક્કમ નિર્ણય કરવાની વાત હોય, જીએસટી ની વાત હોય, એનઆરસી ની વાત હોય, જ્યારે પાર્ટીમાં હતો ત્યારે પણ આ બધા જ મુદ્દાઓનું સમર્થન મેં કોંગ્રેસના હોદ્દેદાર હોવા છતાં પણ કર્યું હતું. હું બીજા નેતાઓની જેમ કે બીજા અન્ય હોદ્દેદારોની જેમ કોઈ બીજી પાર્ટીમાં આવું, કોઈ બીજી પાર્ટીમાં આવીને જનસેવાના કામમાં વધુ આગળ વધવું, ત્યારે હું એવું નહીં કહું કે એ લોકોએ માત્ર આવું તેવું કર્યું છે, પરંતુ જ્યારે આ રાષ્ટ્રના હિત માટે માનનીય નરેન્દ્રભાઈ હોય, અમિતભાઈ હોય, જેપી નડ્ડા સાહેબ હોય, ગુજરાતના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ હોય કે સી.આર. પાટીલ સાહેબ હોય, આ બધા જ લોકો રાષ્ટ્રના હિત માટે જે ભગીરથ કાર્ય કરે છે. તો દર્શક મિત્રો, જે રીતે હાર્દિક પટેલે કહ્યું કે રાષ્ટ્રહિતમાં, રાજ્યના હિતમાં કામ કરવા માટે નવી ઇનિંગની શરૂઆત કરી છે, રાજકીય ઇનિંગની શરૂઆત કરી છે. પરંતુ એક વસ્તુ ચોક્કસ અત્યારે કહીશ કે કેટલાક રાજકીય પંડિતો એવું માની રહ્યા છે કે હવે હાર્દિક પટેલની વાસ્તવિક રાજકીય સફરની શરૂઆત થઈ છે. અને આ જ મામલે ચર્ચા કરવા માટે આજે આપણી સાથે જોડાયા છે આઈટીવી નેટવર્કના એડિટોરિયલ ડાયરેક્ટર આલોક મહેતા સાહેબ, રાજકીય વિશ્લેષક જયેશ શાહ, પાટીદાર નેતા હિતેશ જસોલિયા અને ભાજપના નેતા સાવનભાઈ પંડ્યા. આપ ચારેનું સ્વાગત છે. आलोक सर, आपको सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से भाजपा में शामिल हुए हार्दिक पटेल, पहले हार्दिक पटेल ने बहुत निवेदन किए, बयानबाजी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश के भाजपा के नेता, उन सबके खिलाफ में बहुत बयानबाजी की 2015 से लेके 2000 भाजपा में ज्वाइन होने से पहले. तो इसका मतलब क्या होता है कि इतनी बयानबाजी किया, आरोप लगाए और फिर भाजपा में शामिल होना, इसका मतलब क्या निकल सकता है? देखिए अभिजीत भाई, गुजरात के लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से पहले ऐसे कई बार ऐसे मौके आए हैं जब एक दूसरे के खिलाफ बोला गया. सबसे बड़ा चर्चा, चूँकि मैं 74 से शुरू करने की बात करता हूँ, चिमन भाई पटेल कांग्रेस के थे, उसके खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन हुआ, वो बीजेपी के खिलाफ कितना बोलते थे और सब लोगों के खिलाफ बोलते थे. लेकिन बाद में क्या हुआ, वो किस तरह उनको कितने सहयोग दे करके वो सरकार में आए हैं, वीपी सिंह क्या कहते थे और उसके बाद में क्या हुआ. तो जिनका ही सहयोग लेकर, बीजेपी का सहयोग लेकर वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए. चरण सिंह कांग्रेस का, चरण सिंह से बड़ा कौन वो था, उनको जेल भेजा इंदिरा गांधी ने, वो कई वर्ष पुराने, वो भी कांग्रेसी थे. तो मैं तो बड़े बुजुर्ग नेताओं की जो प्रधानमंत्री बने हैं उनके बयानों को बाद में बदलना पड़ा जब उनको लगा कि ये ठीक नहीं है, या वैचारिक दृष्टि से जो पास में है. कांग्रेस पार्टी में आज जो पतन की स्थिति है, इसलिए हार्दिक पटेल का जाना, या उसके पहले विभिन्न प्रदेशों में, पंजाब में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, दूसरे राज्यों में देखिए किस तरह से लोग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उदाहरण है, कितने नेता वहाँ से चले गए और कांग्रेस का वहाँ कुछ नाम नहीं है. तो गुजरात में हार्दिक पटेल युवा नेता हैं, और आपने ठीक कहा, ये सही है कि वो एक समय थे, लेकिन आदमी को समझ तो आता है ना कि यदि मुझे समाज के लिए काम करना है तो मुझे सही रास्ते पर सही पार्टी के साथ जाना पड़ेगा. पिछली बार तो जब वो चुनाव हुआ था तब तो वो उसकी उम्र चुनाव लड़ने लायक नहीं थी. इस बार उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया
और उनसे कहा कि काम ही मत करो, तुम बैठे रहो, बस खाली तुमको एक पहना दिया है। अभिजीत भाई, आपको कहीं बिठा दे और कहीं आप बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो आप कहेंगे भाई मैं कब तक यहाँ बैठा रहूँगा। इसलिए हार्दिक पटेल ने एक सही निर्णय सही समय पर किया है। वो कांग्रेस को अपना आत्ममंथन करना चाहिए कि उनकी गलतियों से उनके पास एक अच्छा युवा नेता हो सकता था। ये ठीक है, बीजेपी में भी उनको परेशानी होगी, पुराने बयान को लेकर लोग आपत्ति करेंगे, क्योंकि जो पुराने, लेकिन उनको सबको साथ लेकर चलना उनका भी एक चैलेंज होगा। જી હિતેશભાઈ, તમારી પાસેથી જાણીશ કે પાટીદાર અનામત આંદોલન ચાલુ કર્યું 2015માં કર્યું હતું. હાર્દિક પટેલ એ વખતે 22 વર્ષની ઉંમર હતી અને જે પ્રકારે યુવા નેતા તરીકે ઉભરી આવ્યા અને તે વખતે તેમની જે સ્પીચ હતી એ ધારદાર સ્પીચ હતી અને પછી હવે જ્યારે કોંગ્રેસને સમર્થન આપ્યું પહેલાં 2017માં, પછી 2019માં કોંગ્રેસમાં જોડાયા. 1161 દિવસ પછી એમને કંઈક એવું લાગ્યું કે કોંગ્રેસમાં તેમનો નજરઅંદાજ કરવામાં આવી રહ્યા છે, તેમનું અવગણના કરવામાં આવી રહી છે. કોંગ્રેસ છોડીને હવે ભાજપમાં જોડાયા. પાટીદાર અનામત આંદોલન સાથે તમે પણ સંકળાયેલા હતા, એમની સાથે જોડાયેલા હતા. હવે જ્યારે એ ભાજપમાં જોડાયા છે ત્યારે પાટીદાર નેતા તરીકે આપને શું અપેક્ષા છે કે હાર્દિક પટેલ જોડાયા તો હવે ભાજપ સરકાર કેવા પ્રકારના એક્શન મોડમાં આવશે? હિતેશભાઈ, અનમ્યુટ કરજો આપનો અવાજ. હિતેશભાઈ, અવાજ નથી આવતો આપનો. તો ટેકનિકલ ખામીને કારણે હિતેશભાઈનો અવાજ આપણી સુધી નથી આવતો, પરંતુ એમની સાથે પાછા ચર્ચા કરીશું. પરંતુ સાવનભાઈ, તમને પૂછવા માંગીશ કે ભાજપના નેતાઓનું કે ભાજપનું દિલ ખૂબ જ વિશાળ છે એ આજે સાબિત થઈ ગયું. કારણ કે હાર્દિક પટેલે જે નિવેદનો કર્યા હતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિશે, અનાપ શનાપ બોલવું, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી વિશે પણ ન બોલવા જેવા શબ્દો બોલવા, અને હવે જ્યારે તેને ભાજપમાં સ્વીકાર્યો તો આની પાછળની રણનીતિ શું છે ભાજપની? લાગે છે કોઈ ટેકનિકલ ફોલ્ટને કારણે સાવનભાઈનો પણ અવાજ નથી આવતો. પરંતુ આપણે પાછા आलोक मेहता सर पास जैसू. आलोक सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि भाजपा की रणनीति क्या हो सकती है, क्योंकि 2022 गुजरात के लिए चुनावी साल है और जिस तरह से भाजपा ने हार्दिक पटेल को अपनी पार्टी में शामिल किया है तो उससे उनका कितना फ़ायदा हो सकता है, कांग्रेस को नुकसान कितना हो सकता है, या भाजपा को जिस तरह से कांग्रेस को फ़ायदा हुआ था और भाजपा का नुकसान हुआ था, और भाजपा को नुकसान हुआ था, हार्दिक पटेल उस टाइम पे कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे, तो इस बार भाजपा को फ़ायदा होने की संभावना है क्या? अभिजीत भाई, ये सही है कि वो युवा नेता हैं. हम ये नहीं कहते कि वो नहीं आते तो पार्टी नहीं जीत पाती, मतलब हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते. लेकिन हाँ, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कई लोगों को, मैंने आप ये देखिए कि आज से नहीं है, पुराने ऐसे समय में कई कांग्रेस से लोग आए, कई अलग विचारधारा के लोग भी आए, और असम के आज मुख्यमंत्री हैं वो तो कांग्रेस से आए थे. लेकिन कैसे अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हैं, उनको पहले शुरू में कुछ नहीं दिया गया, बाद में उनको जिम्मेदारी दी गई. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल हार्दिक पटेल को कोई मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन यह है कि उनकी आज जिस उम्र में एक पार्टी में आने के बाद उनको काम करने का मौका मिले. यदि चुनाव में, जैसा आपने कहा, पाटीदार समुदाय में जैसा वो भी कहते रहे और हमें जितनी जानकारी है कि वो पार्टी में जिम्मेदारी न मिलते हुए भी पूरे समुदाय के लिए घूमते थे. तो ये आपने ठीक कहा, पिछले चुनाव में उन्होंने विरोध किया था. इस बार हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी नरेश पटेल जी को ला रही है तो उनका जो प्रभाव का असर होगा. लेकिन हाँ, हार्दिक पटेल ने जो पहले लगातार हर शहर में जाके कस्बों में जो काम किया है उसका लाभ भाजपा को मिलेगा, और भाजपा का लाभ हार्दिक पटेल को मिलेगा अपना कैरियर बनाने के लिए. उनके लिए ज़िंदगी पड़ी है, अगले 50 साल काम करना है, तो उनके लिए जल्दबाजी नहीं है. यदि वो जल्दबाजी में करेंगे तो फिर गड़बड़ हो सकते हैं. वो अपने सबका सम्मान करते हुए, देखिए नरेंद्र भाई गए थे तब माने बाकायदा मुख्यमंत्री बने थे, और उस समय तो विधानसभा के मेंबर भी नहीं थे. सबका उन्होंने साथ लिया, इसलिए उनको फ़ायदा मिला.
होगा कि कांग्रेस ने, आपने पहले भी बताया कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपना युवा नेता गंवा दिया, कांग्रेस को उसको संभालना नहीं आया, या फिर कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं वीक है, तो ऐसे हालात में कांग्रेस को आत्ममंथन की ज़रूरत है क्या अभी इस माहौल में? देखिए, आत्ममंथन क्या, चिंतन हो शिविर हुआ इतना बड़ा, और उसके बाद राहुल गांधी जाके लंदन चले गए। तो आप ये बताइए कि वो पार्टी, राज्यसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कितना बुरा हाल है। हरियाणा में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में उनकी पार्टी का जो कैंडिडेट है वही हारने की स्थिति में है। चाहे वो राजस्थान में एक हारे, हरियाणा में एक हार जाए, छत्तीसगढ़ में तो अभी चूँकि वहाँ ज़्यादा कोई सामने था नहीं, चूँकि विधायक इतने हैं उनके पास कांग्रेस के, लेकिन महाराष्ट्र में। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन नहीं, उनको पूरा ही अपने सलाहकार और खुद को एक नेतृत्व की जो संकट है, गुजरात में भी वो कैसे करेंगे। आज भी देखिए, वो उन्होंने कहा है आम आदमी पार्टी वहाँ एक्टिव हो रही है, जबकि आम आदमी पार्टी भी फंस गई है कई मामलों में, विवादों में। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आए हैं, एक मंत्री जेल चला गया, जेल में रह रहा है, इस्तीफा नहीं दे रहा है। जो आदर्शवादी हैं, तो कांग्रेस के भी यही है। नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, जिसकी फिर तारीख लगी, इन्फोर्समेंट बुला रहा है, आप कहते हैं हमने कुछ किया नहीं है। जबकि आप तो जानते हैं ये नेहरू का बनाया हुआ अखबार था, और कांग्रेस आत्ममंथन उसका ही नहीं कर पाई कि उसके अखबार की जो है 10,000 कॉपी कहीं दिखाई दे। डेली अखबार, नवजीवन भी हिंदी में था, उर्दू में अखबार था, कौमी आवाज़, ऐसे सब अखबार होते हुए उसका घोटाला कर दिया। 2,000-4,000 करोड़ की आरोप है, कई सब जगह बिल्डिंग बना ली, मुंबई से लेके वहाँ तक। तो कांग्रेस की हालत तो बहुत ख़राब है, और आम आदमी पार्टी ने भी वही चुनावी फार्मूले में पैसे की गड़बड़ के आरोप यदि सिद्ध हो गए या उनके लोग जेल में होंगे तो चुनाव कैसे जीतेंगे। बिल्कुल। आलोक सर, आपने बताया कि चिंतन शिविर हुआ, लेकिन चिंतन शिविर के बाद अब चिंता शिविर की भी ज़रूरत हो गई है, ऐसा लगता है मुझे कांग्रेस को, क्योंकि हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया, उसके उनके 1-2 दिन पहले ही कपिल सिब्बल ने भी इस्तीफा दे दिया, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे राज्यसभा में नामांकन भी भर दिया है। तो ऐसे हालात में 2022 जो गुजरात में चुनावी साल है, तो कांग्रेस का हाईकमांड या प्रदेश का जो नेतृत्व है वो इस बारे में कुछ सोच विचार कर सकती है क्या, या नहीं कर सकती? देखिए, चिंता तो करना होगा, सोनिया गांधी खास करके। देखिए, लेकिन एक बात देखिए, प्रियंका गांधी बाकायदा कल लखनऊ चली गई और उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम तो करेंगे, जो जा रहा है वो जाने दो। ये जरूर, जो एरोगेंस है वो कांग्रेस का ख़त्म नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा चिंता, आपने ठीक कहा, चिंता होनी चाहिए। हम और आप चिंता करते हैं कि अपोजिशन तो कोई रहे, भाई एक तरफा उधर मज़ा भी नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी, ये नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता क्या चाहते हैं? हाँ भाई, कोई सामने अच्छा पहलवान होगा तो लड़ने में मज़ा आता है ना। कोई सामने खिलाड़ी नहीं हो, आप वाकओवर ले जाएं तो वजह ही क्या है लड़ाई का, आपकी अपने शौर्य का, राजनीतिक शौर्य का। तो इस दृष्टि से चिंता तो उनको करना है। लेकिन हाँ, मैं एक बात कहूँगा अभिजीत भाई, देखिए, प्रदेश के नेताओं को मैं कमज़ोर नहीं मानता। प्रदेश के कई नेता अच्छे काबिल हैं, उनको यदि हाँ मौका नहीं दे, पार्टी उनको दबा के रखेगी। आप देखिए ना, हार्दिक पटेल अभी गए, लेकिन अभी भी क्या करें, नरेश पटेल आएंगे तो चलाए। अरे भाई, पहले से शक्ति सिंह गोयल हैं, और इतने सारे उनके पुराने नेता रहे, सोलंकी रहे, उनके पिताजी रहे, ऐसे 50 ऐसे नेता हैं जिनके बल पर यदि उनको काम, या तो वो खुद भी कमज़ोर है। देखिए, मैं अभी भी मानता हूँ कि इसलिए बीजेपी ये नहीं कह सकती कि हम बिल्कुल अकेले सब जीत के आ जाएंगे। कांग्रेस की चुनौती है, इसीलिए वो अभी से तैयारी कर रहे हैं और काम कर रहे हैं जी। इसलिए मैं मानता हूँ कि प्रदेश हाई कमांड से कोई अपेक्षा मत रखिए, वो तो। और मैं मानता हूँ कि गुजरात की स्थिति शायद उत्तर प्रदेश से थोड़ी बेहतर हो। वहाँ के नेता, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस डूबी हुई थी, यहाँ अहमद भाई पटेल नहीं रहे, लेकिन दूसरे और नेता जो कि वो भी चुनाव बीच में तो नहीं लड़ते थे, लेकिन प्रादेशिक नेता कई ऐसे हैं, और कांग्रेस के समर्थन रखने वाले जनता में भी लोग हैं। लेकिन हाँ, झूठ बोल बोल करके राहुल गांधी वहाँ जाके कहेंगे स्कूल भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं है, तो उस झूठ पर तो कोई वोट देगा नहीं, फिर तो और उल्टा जो उनको फायदा होगा नुकसान हो जाएगा जी। तो प्रादेशिक नेतृत्व तो कहेगा राहुल गांधी जितना ना आए उतना अच्छा जी। आलोक सर, आपने बताया कि अहमद पटेल थे तब तक कांग्रेस में सब सही चल रहा था, सब चंगा था, लेकिन अहमद पटेल के जाने के बाद कांग्रेस में जो चेंजेस हुए, कांग्रेस वीक होती जा रही है और कांग्रेस हर एक राज्य में चुनाव हार गई। गुजरात में भी अहमद पटेल जिंदा थे तब तक गुजरात कांग्रेस सही ढंग से काम कर रही थी, लेकिन उनके जाने के बाद कोई ऐसा नेता नहीं है जो गुजरात कांग्रेस को सही
रास्ता दिखाए। तो ऐसे कोई नेता कांग्रेस में अभी तक आए नहीं है या कांग्रेस ने होने नहीं दिया है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये गलती कांग्रेस नेतृत्व की है। मैं अभी भी कहूँगा, अहमद भाई तो ज़्यादा, चूँकि पार्टी का पूरा देश भर का काम भी संभालते थे और गुजरात के प्रति भी उनका चूँकि था, बल्कि उन पर तो कांग्रेस के लोग आरोप लगाते थे, आप भी नरेंद्र मोदी जी से मिले हुए हैं। अब बेचारे, मतलब ठीक है, संबंध राजनीति में एक दूसरे के साथ एक सामाजिक व्यवहार रखना, ये व्यवहारिकता थी। आज क्या कांग्रेस में हो गया कि सब दुश्मन हैं। मोदी जी दुश्मन नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह जी जो है देश के गृह मंत्री हैं, और उनको यदि कोई आज दर्द हुआ, आज सोनिया गांधी का जैसे ही खबर आई कि कोविड से वो प्रभावित हुई हैं, तो तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश है ट्विटर पर, और उन्होंने कहा है कि भाई मुझे वो है, जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। तो राजनीति में अहमद पटेल का, और जैसा मैंने कहा माधव सिंह सोलंकी थे, उन्होंने भी सबके साथ संबंध रखते थे। आज भी ऐसे कई नेता हैं जो अपने बल पर लोगों के साथ मिलकर, ये ठीक है कि उनकी कमी तो खेलेगी ही, लेकिन हाई कमांड, मैंने इसीलिए बार बार जोर दे रहा हूँ, प्रदेश के नेता चाहेंगे भी तो भरत सिंह सोलंकी के खिलाफ भी कुछ बातें 50 पहुँचा दीजिए, शक्ति सिंह गोयल को भी मत करने दीजिए, और भी जो नेता हैं उनको भी आगे, उनको कहीं उनकी बुराई करिए। तो हाई कमांड यदि किसी को आगे नहीं बढ़ने देगा तो दिक्कत आएगी। इसलिए वो पूर्ति केंद्रीय स्तर पर नहीं हो पा रही है। योगेंद्र मकवाणा थे, दलित नेता, मतलब उनका कितना गृह राज्य मंत्री रहे, वे जानते, मुझे कितने ऐसे ऐसे नेता रहे कांग्रेस में भी जो कांग्रेस के बड़े लायल होते थे, लेकिन उन सबको किनारे कर दिया गया। इसकी वजह है कि अब भी यही अवसर है, जैसा हमने शुरू में कहा, कि आप ये मत सोचिए कि वो नहीं है तो संकट है ही, क्योंकि वो सबको मिला के पार्टी के लोगों को भी कई बार वो भी कहते थे इसको नहीं आगे आना है, दूसरे को आगे बढ़ाना है। उसके कुछ फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए अब तो मैंने ये नहीं कि उनकी निधन हो गया, निधन होने से 2-4 साल पहले से राहुल गांधी ने उनकी बातें सुनना बंद कर दिया था। वो जब कहते थे कि भाई वो वहाँ से तमिलनाडु से या गुजरात से कोई प्रदेश का महामंत्री आया है, तो राहुल गांधी उससे मिलते तक नहीं थे। तो अहमद भाई की चलना तो 1-2 साल से पहले ही कम हो गई थी, मतलब उस समय कहना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन दुखद यही है कि आज नहीं हुआ है। उनको निगलेक्ट करने से ही कांग्रेस कमज़ोर होती चली गई है। आलोक सर, आज हार्दिक भाजपा में शामिल हुआ, उससे पहले सुबह में उसने एक ट्वीट की थी और उसमें साफ साफ लिखा था, उसने ऐसा बताया था कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का छोटा सैनिक हूँ, पार्टी जो भी काम सौंपेगी वो काम करूँगा, आम कार्यकर्ता की तौर पे काम करूँगा। तो पहले अनाप शनाप बयानबाजी करना और अब ऐसी बातें करना, क्या आपको लगता है कि हार्दिक कुछ मकसद के साथ आया हुआ है भाजपा में, या फिर भाजपा की कोई रणनीति है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 2022 के इलेक्शन में जो 150 प्लस का टारगेट भाजपा ने रखा है उसको चेस करने के लिए, दोनों पार्टियों को रोकने के लिए ऐसा स्ट्रेटेजी बनाया गया हो? देखिए, कांग्रेस पार्टी को निपटाने के लिए या आम आदमी पार्टी से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी तो सारे फार्मूले जिसको कह सकते हैं, चाहे वो बूथ मैनेजमेंट की बात होगी, कैसे लोगों से, जिसको कहते हैं कि पन्ना प्रमुख वाला काम है, तो हार्दिक पटेल को स्वीकार करने का मतलब है कि वो ज़मीनी, और उनका आपने शुरुआत जो बात कही ना कि हार्दिक पटेल ने कहा कि मैं सेवक हूँ, ये सही है। नरेंद्र मोदी जी के सामने यदि वो शर्तें रख कर आते या पार्टी के सामने कहते कि मुझे ये बनाएंगे तो देंगे, तब तो उनको नहीं स्वीकार किया जाता। आज भी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो, इसलिए वो अपनी बात जानते हैं, और जब आदमी कहता है कि मैं सिपाही हूँ, वो तो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मैं तो सेवक हूँ, तो वो कह रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप उसको सैनिक की भूमिका दें, सेनापति भी सेना की तरह लड़े। सेनापति घर में बैठ जाएगा तो काम नहीं चलेगा। हार्दिक पटेल ने ये, इसका मतलब ये है कि मैं अभी तक जो घूमता था बगैर किसी बैनर, बगैर पार्टी ने मुझे साथ नहीं दिया, मुझे एक सिपाही की तरह से मैं मोदी जी के लिए काम करूंगा। मतलब लॉयल्टी पार्टी के प्रति और उनके प्रति होगी। और मेरी यदि वो शर्त रखते, जैसे मैंने कहा ना, न ज्योतिरादित्य शर्त नहीं रख पाए, न वहाँ पर असम के मुख्यमंत्री नहीं रख पाए, या जो लोग भी आए हैं पार्टी में, महाराष्ट्र में आए, मध्य प्रदेश में आए, तो उनको इंतज़ार करना पड़ता है। और इसीलिए हार्दिक पटेल की तो उम्र है, इसलिए उनका ये कहना बिल्कुल ठीक है। पहले के बयान इसलिए थे कि तब तक वो कांग्रेस पार्टी में रह कर के ये विश्वास दिलाते थे कि भाई मैं लड़ सकता हूँ,
ये बीजेपी से उनका व्यक्तिगत उनसे दुश्मनी नहीं होगी। वो तो मुझे मालूम है, हम यहाँ नाम नहीं लूँगा, कांग्रेस पार्टी के कई नेता हैं जो अपने नेताओं को कहते हैं कि तुम जाकर के गाली दो, दूसरे विरोधी, मोदी जी को गाली दो, मीडिया को गाली दो, चैनल को गाली दो, कोई और कहीं पर विदेशी है तो उसका कह दो कि सब कुछ है, देश में सब कुछ नष्ट हो गया है। तो बेचारे हार्दिक पटेल की मजबूरी थी, एक प्रवक्ता की तो इसीलिए मृत्यु हो गई जो कांग्रेस के थे कि उनको मोबाइल पे बार बार दबाव दिया जाता था। इससे पहले एक बार तो उन्होंने मुझे खुद आके कहा कि सर आपके खिलाफ मुझे गाली देने की, गाली मतलब जितना ज़्यादा बुरा कह सकता हूँ मैं कहूँ, और आपको व्यक्तिगत रूप से बुरा कहूँ। तो इस तरह की पार्टी की वजह से हार्दिक पटेल बोले होंगे। लेकिन इसीलिए बड़ा, देखिए मोदी जी और जो बड़े नेता होते हैं वो छोटे के क्षमा करने की पुरानी परंपरा है कि यदि अपराध भी किया है तो माफ़ कर दो, यदि उसने गलती की, बच्चा है, उनके सामने तो बच्चा है ना हार्दिक पटेल जी। यदि कुछ गाली वाली हम और आपको बुरा लग रहा है या पार्टी के कई लोग उनको दिला रहे होंगे, अरे साहब ये बोलता था, अरे कई बार बच्चे बिगड़ जाते हैं, थोड़ा सा कहीं रास्ते से भटक गए, उस समय गुस्से, माँ बाप से भी गुस्सा होकर चले जाते हैं। तो यहाँ तो वो पार्टी में नहीं थे, उस समय बोले। अब उनको यदि वो आगे कुछ गलत सलत बोलने लगे, प्रदेश के नेताओं के खिलाफ कुछ बोलने लगे, तब गड़बड़ हो सकता है। मुख्यमंत्री या पुराने, पहले आनंदीबेन पटेल तो मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने विरोध किया था, लेकिन आज तो वो उनका या वर्तमान मुख्यमंत्री पटेल जी उनके खिलाफ थोड़ी बोलेंगे। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि वो एक समझदार नेता की तरह से पार्टी में आए हैं और पार्टी ने भी उनके जो पुराने, जिसको कहते हैं गलतियां या आरोप हैं, उसको भुला करके उनको गले लगाया है, माफ़ कर दिया है। जी आलोक जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आनंदीबेन पटेल का जिक्र हुआ तो 2015 में जब आंदोलन हुआ तो आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री के तौर पे थी। उन्होंने काफ़ी बार पाटीदार समुदाय को, सबको बुलाया मीटिंग के लिए, लेकिन ये लोग गए नहीं, और जो आंदोलन छेड़ा उसके बाद न आनंदीबेन पटेल को फेसबुक पर अपना रेजिग्नेशन अपलोड करना पड़ा और देना पड़ा मुख्यमंत्री पद से। तो ऐसे हालात में आज एक बात खुल के सामने आई, देखने मिली कि जब हार्दिक पटेल भाजपा में शामिल होने आया तो आनंदीबेन पटेल गुट के जो है नेता, वो नेतागण कहीं पे दिखने को नहीं मिला। जैसे कि भूपेंद्र पटेल जो अभी सीएम है वो आनंदीबेन पटेल गुट के है, वो नहीं आए। उनके आने का अनाउंसमेंट भी हुआ था, आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आए। दूसरे कई ऐसे आनंदीबेन पटेल गुट के नेता है जो आज देखने को नहीं मिले। इसके पीछे क्या समझा जाए? देखिए, इसका जवाब तो अपने भाजपा के प्रवक्ता यदि यहाँ पर होते तो शायद ज़्यादा अच्छा देते। हम दिल्ली में बैठे हुए यही कह सकते हैं कि देखिए, कई बार मुख्यमंत्री, आज भी कुछ और राज्यों में भी ऐसे पार्टी के नेता शामिल हुए, तो ज़रूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद हो। दिल्ली में भी कल एक और नेता उत्तर प्रदेश के कोई शामिल हुए तो उनको ऐसा नहीं हुआ कि उनको उसके लिए मुख्यमंत्री मौजूद हों। तो ये सही है कि, और गुट, देखिए आनंदीबेन पटेल अब गवर्नर हो गई हैं, वो अब कोई डे टू डे की राजनीति में नहीं है। हाँ, ये ठीक है, जो उनके साथ संबंध जिनके रहे, जो थोड़ा हार्दिक पटेल से जिनको ज़मीनी लड़ाई लड़नी पड़ी, उनके लिए ज़रूर थोड़ी सी महसूस हो रहा होगा कि भाई देखिए, हम तो इनके खिलाफ लड़ते थे। ये पार्टियों में जब इस तरह से दल बदल जिसको कहते होता है, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगता है कि इसीलिए उनको, जी मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि भूपेंद्र पटेल जी की इच्छा के बिना हार्दिक पटेल को लिया गया, तो उनकी अनुपस्थिति को मैं कतई ऐसा नहीं मान सकता। उनको बता करके, उनकी रजामंदी लेकर के, उनको विश्वास में लेकर के ही, ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी सबके साथ संवाद रखते हैं और वो स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा हो सकता है जिसमें वो खुद उपस्थित न रहें और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके सामने आए और वो उनका प्रोजेक्शन करे। देर सवेर वो सबके साथ, मैंने इसीलिए बार बार जोर दिया, अब कोई गुट, देखिए मोदी जी के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा गुटबाजी करने को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। तो वो लोग गुट को, मैं इसलिए आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, मुझे नहीं लगता कि वो हार्दिक पटेल को लाने का यदि हाईकमांड ने फैसला किया है तो कोई गुट उनका विरोध करने वहाँ नहीं जाएगा और कल उनको काम नहीं करने देगा, ऐसा हमें कहीं, जो आज तक जो मैं भाजपा को जितना समझता हूँ, बाकी भाजपा के प्रवक्ता शायद ज़्यादा इसका जवाब दे सके। अभिजीत जी। हितेश भाई,
લાગે છે કે હજી હિતેશભાઈને એ લોકોને સાથે સંપર્ક નથી થઈ શકતો. આલોકજી સાથે જ આપણે વાતચીત આગળ શરૂ રાખીશું. आलोक सर, एक बात ये है कि एक बार केंद्रीय गृह मंत्री के लिए हार्दिक पटेल ने जो शब्द बोले थे उसने जो बोले थे वही शब्द मैं बोल रहा हूँ कि जनरल डायर बताया था उनको. तो ऐसे शब्द बोलने के बावजूद भी अमित शाह ने एक्सेप्ट किया, भाजपा ने एक्सेप्ट किया हार्दिक को भाजपा में लेने का. इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति या रणनीति हो सकती है भाजपा की? देखिए अभिजीत जी, जो पुराने नेता हैं, ऐसा नहीं अमित भाई हों या मोदी जी हों या और भी पार्टी के जो नेता हैं, कांग्रेस में भी कई ऐसे पुराने नेता, जैसे गुलाम नबी आज़ाद थे, फारूक अब्दुल्ला से कितना लड़ाई हो, कभी किसी से उनके साथ दूसरी पार्टियों के साथ मतभेद रहे, बीजेपी से रहे, कई ऐसे नेता जो पुराने नेता होते हैं. ये देखिए, ये तो बड़ा, आप कह रहे संपादक के खिलाफ हिटलरशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, आप जनरल डायर की तरह हमको जाति नहीं करेंगे. ये जो तुलनाएं हैं, ये सड़क पर जो श्रम आंदोलन होते हैं या किसी आंदोलन के जो नारेबाजी में जो बातें बोली जाती है, उसको कोई समझदार नेता, मैंने आपको बताया ना, मैं तो कई वर्षों से संपादक रहा हूँ. कभी बार ऐसा होता था कि लोग मैनेजमेंट के साथ संपादक जो कोई मजदूर यूनियन के लोग हैं वो हमें भी गाली देते थे. तो अब क्या कहें कि हम हिटलर हो गए, तानाशाह हो गए. वो बाद में उसी को बैठ के चाय पी के हमारे साथ काम करते थे. तो ये इस तरह की बातें हम मीडिया, आजकल ये वीडियो जो चलता है ना हमारा सोशल मीडिया, माफ़ कीजिएगा, हम लोग भी उसके ज़िम्मेदार हैं कि हम कहते देखिए ऐसा बोला था. भाई जो जिसको बोला वो तो उसको बुरा, वो हंस रहा है इस पर, कहता है यार ये हिटलरशाही नहीं चलेगी तो रोज़ का तानाशाही नहीं चलेगी. आप अपने घर में हमारी बेटी कहती आप तानाशाही, आप हमारी बात सुन नहीं रहे, आप तो टीवी के लिए बात कर रहे हैं 1 घंटे से, तो क्या हम तानाशाह हो गए, हिटलर हो गए क्या? लेकिन इसलिए मैं उसको इतना सरल रूप में लेता हूँ. आपने जो कहा क्यों उनको स्वीकार कर लिया, वो एक स्ट्रेटेजी के तहत एक पार्टी में एक आदमी आ रहा है जिसका पाटीदार समुदाय में, युवाओं में या दूसरे समुदाय में असर है, तो पार्टी में उसको लेना पार्टी के हित में है. यदि वो पार्टी के सिद्धांत मान रहा है, यदि पार्टी के नेतृत्व को मान रहा है, वो भूपेंद्र पटेल जी को मुख्यमंत्री मान रहे, थोड़ी कह रहा कल मुझे मुख्यमंत्री बना दोगे, वरना तो उसको अंदर ही नहीं आने देते. तो अमित शाह जी के लिए आपने जो सवाल पूछा, मैंने उनसे इस बारे में कोई पूछा नहीं, लेकिन आप उनसे पूछेंगे तो वो भी हंस के टाल देंगे. वो कहेंगे अरे क्या है, बच्चे कुछ बोलता है उसको कोई हम परवाह करते हैं क्या? आज तो ये कह रहे राहुल गांधी भी नहीं पैर छूने उनके, अरविंद केजरीवाल के आपने दृश्य देखे होंगे, वो तो बीजेपी नेताओं के पैर छूते रहते थे, हमने देखा उनको. तो उस समय तो उनको सहायता चाहिए, कांग्रेस वालों के पैर छूते रहते थे. तो वो कई बार ऐसा आता है राजनीति में, लोग बोल देते हैं कुछ खिलाफ, फिर बाद में पैर छू लेते हैं जा करके, अभी भी छू लेते हैं. तो ये तो पार्टी में आए हैं, प्रतिपक्ष में भी नहीं है. जरूर. आलोक सर, हम 2017 की बात करते हैं कि 2017 में कांग्रेस को हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी और अल्पेश ठाकोर, ये तीनों का समर्थन मिला था. और उस टाइम जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो भाजपा ने 150 प्लस का टारगेट उस टाइम रखा था, लेकिन इन तीनों के युवा नेता थे और अलग अलग सेक्टर के आंदोलन चला रहे थे. तो इन तीनों का समर्थन कांग्रेस को मिला. उसके कारण भाजपा 99 सीट पे रोकने में कामयाब हो गई थी. कांग्रेस 99 सीट पे ही भाजपा रुक गई थी. और कांग्रेस ने 25 साल में अच्छा प्रदर्शन किया था और 77 सीटें जीती थी. लेकिन इस बार पूरा पिक्चर अलग है. अल्पेश ठाकुर 2019 में कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए. हार्दिक पटेल 2022 में कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए. जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस में जुड़ गए हैं, समर्थन पहले था, अब जुड़ गए, विचारधारा से तो जुड़े हैं, लेकिन अब चुनाव आने वाले हैं तो उस टाइम पे कांग्रेस की टिकट पे चुनाव भी लड़ेंगे. तो ऐसे हालात में जो पाटीदार समुदाय है, जिसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है गुजरात में, तकरीबन 12 to 14% वोट शेयर है गुजरात में, और 55 सीटों पे इनका प्रभुत्व है, इनका वर्चस्व है. तो ऐसे हालात में कांग्रेस को कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और भाजपा को जो नुकसान हुआ था, पाटीदार समुदाय की जो बेल्ट है वहाँ पर खास करके सौराष्ट्र में बहुत नुकसान हुआ था. तकरीबन 11 से 13 सीट का नुकसान हुआ था सीधा, और कांग्रेस को फ़ायदा हो गया था. तो ऐसे हालात में ये जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई इस बार होने की संभावना हार्दिक पटेल की एंट्री से लग सकती है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि इतना आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, और ये सही है कि कांग्रेस जिस तरह से कमज़ोर हुई है, और जो बीजेपी को लगता था जहाँ से हमारी उनके जिन विधानसभा क्षेत्रों में वो ठीक से काम नहीं कर पाई,
वहाँ पर वो चाहते हैं कि उसको किसी तरह से ठीक करना है। वो बीजेपी ने पूरा उसका अभियान चलाया है, इसलिए अकेले हार्दिक पटेल नहीं, आप देखिए कि इस समय 4-5 बड़े नेता मुख्यमंत्री सहित वो भाजपा के साथ आ गए हैं। और लेकिन अभी भी मैं कहूँगा जिन विधानसभा क्षेत्रों में यदि पार्टी के लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, यदि अपने जो ये सोच करके कि मोदी जी और मुख्यमंत्री जिता के ले आएंगे या अमित शाह जी जिता देंगे, ये इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी कहते हैं, जेपी नड्डा कहते हैं, भाई आप जाइए। आपने देखा होगा सबको यात्रा करने के लिए कह दिया गया, जो कार्यक्रम बने हैं 8 साल मोदी जी के कार्यकाल का है, वो जाके घर घर जाके लोगों को बताना है, कार्यकर्ता से लेके प्रदेश के विधायक। इसलिए चुनौती तो है, मैं क्या इतना आसान मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ 99 से 150 का टारगेट रख करके ही आप 140 या 130 ला सकते हैं। यदि आप टारगेट ही रखेंगे 99 तब तो 77 हो ही जाएगा। इसलिए ये नहीं है, कोशिश करेंगे और पूरी ताकत इसीलिए लगा रहे हैं, जो आ सकता है, जहां हमारी कमियां हैं, जिन कार्यक्रमों को ठीक से क्रियान्वित नहीं हुआ है या जिस योजना का लाभ आदिवासी इलाके, देखिए पाटीदार समुदाय, ग्रामीण क्षेत्र, आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को और ग्रामीण क्षेत्रों को बराबर फोकस कर रहे हैं लगातार। अभी जो संडे को उन्होंने बात की, गुजरात के भी मेहसाणा के थे, उनसे बात करके, और वो हर जिले के बारे में जानते हैं जी। तो इसलिए ये सही है कि चुनाव को युद्ध की तरह लड़ने की कला केवल इन बड़े नेताओं के पास है, नरेंद्र मोदी को खास करके, जो जानते हैं कि भाई हमें युद्ध है, ये ऐसा नहीं है आसान से जीत आना। इसलिए हम और आप नहीं कह रहे हैं, वो भी जानते हैं कि भाई ऐसा ना हमने मुख्यमंत्री बदल दिया, कहीं यदि पूरे कार्यक्रम पूरे नहीं हुए तो ऐसा तो ना होगा कि कहीं नुकसान हो जाए, या जो लोग हमारी पार्टी के नाराज हैं वो घर में बैठे रह जाएं। खतरा सेबोटेज ऐसा नहीं होता, सेबोटेज खाली होता है कि अरे अभी जी देख लेना, वोट डालना हो तो डालना, नहीं तो चलो आप अभी फंसे हुए हो, काम कर रहे हो तो देख लेना, तो आप हो सकता है दफ्तर से बाहर ना जाए। तो इस तरह के सेबोटेज भी ना हो कि लोग अपने कार्यकर्ताओं को भी छोड़ दें कि अरे देख लेना, हमें तो हम खुद ही खुश नहीं हैं। कई लोगों के टिकट कटेंगे। आप देखिए जब मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं तो मैं नहीं मानता कि विधानसभा में जो पिछली बार मेंबर आए हैं सबको टिकट मिल जाएगा। हो सकता है उनको कोई और काम दे दे संगठन का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको निकाल दिया जाएगा, लेकिन ये पार्टी तय करेगी। और इसलिए ये आसान बात नहीं है कि वो हम वही सीटें रिटेन करें। देखिए पिछली बार एक और बात थी, मैं बात जरूर ध्यान देना चाहूँगा 2017 में, इसलिए कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तो वहाँ पर लोगों की अपेक्षा क्या होती है। देखिए जैसे हम घर में सबसे जो बड़ा है, जो बहुत अनुभवी है, उसके लोग अपेक्षा क्या करते हैं, अरे तुम्हारे पिताजी तो ऐसा करते थे, तुम तो ऐसा कर नहीं पा रहे हो। तो वो जो उस समय जो सरकार थी, अपेक्षा क्या करते, मोदी जी की तरह ऐसा नहीं दिख रहा है, तो वो खतरा उस समय था। लेकिन 2019 के बाद अब स्थितियाँ बदली है, अब लगा है कि मोदी जी उसी तरह से ध्यान देते हैं। और एक भूपेंद्र पटेल जी को बनाया, पहले भी जो मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, उन सबका उपयोग करना है। इसलिए 2017 जैसी स्थिति अब नहीं है। अब बीजेपी ज़्यादा स्ट्रांग है, पूरे वर्ल्ड में जिसका हो रहा है, जितने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कोविड में गुजरात में जितने ढंग से उसको काम किया गया, क्या वो लोगों को नहीं दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा सूरत के व्यापारियों को समस्या आई है, अब वापस उनको उबारने की कोशिश हो गई है, भाई कैसे कैसे लोगों को लोन मिल गया, जो छोटे छोटे व्यापारी थे, जो छोटे दुकानदार थे, जो ग्रामीणों में किसानों को यदि कहीं जो 6,000 अभी उन्होंने इस संडे को ही 2-2 हज़ार रुपये का राशि एक साथ इतने करोड़ लोगों को, 4 करोड़ लोगों को दे दिया। तो ये जो किसानों को पहुंचा गया सीधे खाते में, उसमें गुजरात के लोगों को मिला है। तो मुझे लगता है कि इस सब के बल पर जीतने की कोशिश करेंगे। ये आसान नहीं है कि हम कांग्रेस खत्म या आम आदमी पार्टी नहीं है तो हम आराम से बैठ जाएं, वोट मिल जाएगा। वोट मिलता है जब आपका वर्कर भी एक्टिव रहे, विधायक जो अच्छा हो, जिसको उम्मीदवार बनाया, और जो यदि पहले जो रहा है उसने काम किया हो, वरना लोग दूसरा विकल्प देख लेते हैं। जी आलोक जी, 2017 के चुनाव की बात हो रही, आप जानते हैं होंगे कि गुजरात में पाटीदार में 2 प्रकार के होते, लेवा और कड़वा। 2017 में भाजपा ने 29 लेवा पाटीदारों को, पटेलों को, और 23 कड़वा पटेलों को टिकट दी थी और मैदान में उतारा था। जबकि कांग्रेस ने उस टाइम पे 26 लेवा और 21 कड़वा
कैंडिडेट्स को टिकट देके उतारा था मैदान में। सौराष्ट्र की टोटल जो है 54 बैठक, उसमें कच्छ का भी समावेश किया, कच्छ को भी शामिल किया गया है, तो कच्छ की 6 सीट माइनस कर देते तो 48 सीट्स रहती है सौराष्ट्र की। उसमें से 2012 में 16 बैठक जो मिली थी कांग्रेस को, उसको 2017 में 30 बैठक मिल गई, 14 बैठकों का फायदा हो गया सीधा। तो लोक नीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज पोस्ट पोल सर्वे 2017 है, उसके हिसाब से कड़वा पटेल जो थे उसमें 8% और लेवा ने 51% भाजपा को वोट दिए थे। और 2012 की जो परसेंटेज है भाजपा को, तो 78% और 63% थी। पाटीदारों के कांग्रेस में पाटीदारों ने जो वोट किया 2017 में, उसमें उनका वोट शेयर बढ़ गया और 2012 में सिर्फ 9% और 15% मिला था, उसकी जगह 2017 में 27 और 46% जितने वोट लेवा और कड़वा के मिले। तो इसको चलते जो पोस्ट पोल सर्वे हुआ है उसमें इतना है, तो इस बार पूरा उल्टा दाव हो सकता है। और भाजपा का जो गढ़ था एक समय में सौराष्ट्र 2017 तक भाजपा का गढ़ माना जाता था, 2017 में कांग्रेस ने सभी सीट जीत ली, 14 सीट ले ली। तो ऐसे हालात में हार्दिक पटेल का समावेश हुआ है, हार्दिक पटेल शामिल हुआ है, तो क्या ये वोट शेयर कन्वर्ट हो सकते हैं भाजपा में? बिल्कुल अभिजीत जी, आपने बहुत सही पूरे सारे आंकड़े दिए हैं। देखिए जिस तरह से, और इनका क्या कहना है, आपने ठीक है जातीय समीकरण का रखा, लेकिन आपने ताज़े भाषण, ताज़े उनके और भी विचार सुने होंगे, और मेरी कई लोगों से बात भी हुई भाजपा के बड़े नेताओं से। वो कहते हैं कि देखिए मोदी जी जाति के आधार पर या जिसको कहते हैं सांप्रदायिक आधार पर, या पहले उसका कितना है, वो ये देखते हैं कि काम करने वाला ईमानदार यदि आदमी है और उसका कैसे, उसका यदि उस आधार पर, जाति के आधार पर यदि खाली वोट टिकट दे देंगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, यदि वो काबिल है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो अपनी योग्यता के बल पर भी उनको चयन किया जा रहा है, तो इस बार एक एक सीट को लेकर के ये ठीक है कि उसमें हार्दिक पटेल का फ़ायदा तो मिलेगा ही। पिछली बार जो कमियां रही थी जिन जातियों, मतलब जैसे आपने कहा, उनमें भी वो ये देखते हैं कि हाँ उनको प्रतिनिधित्व मिल जाए, लेकिन मान लीजिए 2 कम है इस उपजाति के, दूसरी उपजाति के ज़्यादा हैं, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं विनिंग कैंडिडेट होना चाहिए। वो इस पर शर्त, उनकी सबसे बड़ी शर्त यही है कि विनिंग कैंडिडेट हम लेंगे, वो चाहे इस समुदाय का हो या उस समुदाय का हो। कई जगह आप देखेंगे जहाँ से समुदाय का बाहुल्य है, लेकिन उनको लगा कि नहीं, लोग दूसरा पॉपुलर आदमी है। आपने देखा गुजरात में बड़ी जागरूक जनता भी है। कई बार वो ये सही है कि पाटीदार समुदाय तो सब है, उन्हीं में से एक वर्ग, और सौराष्ट्र खास करके आप देखिए, वो सौराष्ट्र जो सोमनाथ द्वारका, जहाँ से तो मोदी जी ने राजनीति की शुरुआत की, दूसरी तरफ सूरत जैसा इलाका जो व्यापारियों का शहर है, हीरो के, वहाँ से उन्होंने नगरपालिका से काम शुरू किया। तो चप्पे चप्पे में उनका जोर क्या रहने वाला है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, और उनका क्या प्रदेश के, वो तो एक तरह से आप बड़े शिखर पर बैठे हैं, वो कोई, लेकिन हाँ उनके सामने जरूर लाया जाएगा, चूँकि वो हर इलाके को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं जी। तो कैंडिडेट्स को, जो आपने ठीक कहा, हार्दिक पटेल हो, भूपेंद्र पटेल हो, या और जैसा आपने कहा जो हार्दिक पटेल के साथ जुड़े रहे हों, या पहले जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे नितिन पटेल, उनका जो प्रभाव रहा हो, तो इन सब को लेकर के भी, वो सबको लेकर के साथ उनमें जो बेस्ट होगा उसके आधार पर उन सबसे अधिकाधिक इस बार सीटों का टारगेट 150 रखेंगे, इस पर कोई शक ही नहीं है। बल्कि हो सकता है कि और ज़्यादा सीटें, जैसे होता है ना सरप्राइज़ जी, कि दूसरी पार्टियां चूँकि बिल्कुल ख़त्म जैसी है, और वहाँ कांग्रेस बिल्कुल यदि मान लो 10 सीटों पर ही अटक जाए, यूपी की तरह 2 सीटों पर, 5 सीटों पर आ जाए, और आम आदमी पार्टी 4 सीट पर आ जाए, तब तो स्वीप हो जाएगा गुजरात में। इस बार तो ऐसी स्थिति मुझे दिखाई देती है जो भाजपा के लिए, जिसको कहते हैं लहर, गुजरात में दिखाई दे सकती है जी। आलोक सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि हार्दिक पटेल के खिलाफ में राजद्रोह के 2 समेत 1 दर्जन जितने केस अभी पेंडिंग है। कुछ एक केस वापस खींचने की अर्जी की थी, जिसमें पहले मेट्रो कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दी, लेकिन सेशंस कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और कुछ एक केस को
उसमें से मुक्ति मिल गई, लेकिन अभी 1 दर्जन जितने केस पेंडिंग है। पाटीदार समुदाय, पाटीदार अनामत आरक्षण आंदोलन जो हुआ था उस टाइम पे, उस हार्दिक के साथ जुड़े हुए कई लोगों के खिलाफ आज भी केस चालू है। हार्दिक के खिलाफ केस वापस खींचने की शुरुआत हुई, 1 दर्जन जितने केस पेंडिंग है वो भी अब वापस खींच लेगी सरकार, क्योंकि भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन पाटीदार अनामत आरक्षण आंदोलन में उसके साथ ही रहे, आज हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो अपने साथ नहीं जुड़ सके और बात नहीं हो पाई। लेकिन उनकी डिमांड ये है कि अगर हार्दिक पटेल भाजपा में शामिल हुआ है तो पाटीदार आरक्षण आंदोलन के समय जितने भी केस हुए, जितने लोगों के खिलाफ हैं, वो सब केस वापस खींच लेना चाहिए। और दूसरा कि जो 14 लोग मर गए थे, हिंसा हुई थी और उसके बाद जो 14 पाटीदार युवा मर गए थे, उनको भी न्याय मिलना चाहिए, उनको भी जो सहायता सरकार को देनी है वो देनी चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो इस बार चुनाव, उन्होंने ऐसी चेतावनी दी है कि अगर ये नहीं हुआ चुनाव से पहले तो चुनाव में इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। इसका मतलब क्या निकल सकता है? बिल्कुल, देखिए ये भावनात्मक मुद्दा है और लेजा मैंने अभी चर्चा कर रहे थे ना कि उन्होंने क्या बोला था। तो ये जो एक तो जो सेडिशन का मामला है, जो राजद्रोह वगैरह की, जो राष्ट्रद्रोह की बात कही जाती है, ये आपने भी ध्यान दिया होगा और पूरे गुजरात की जनता जानती है कि सुप्रीम कोर्ट अब कह चुका है कि ये अब इस कानून का कोई मतलब नहीं रह गया है और इसलिए इस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं की जाए, उस पर वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। तो जो मामले आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं हार्दिक पटेल का, केवल गुजरात सरकार वापस लेने की बात नहीं है, वो पूरे देश में ऐसे जो मामले होंगे वो ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। उसके कानूनी प्रक्रिया जरूर होगी, क्या तरीका अपनाएंगे। और इसलिए पहली बात तो ये कि हार्दिक पटेल के मामले जो देखिए बहुत गंभीर कोई ऐसा आर्थिक अपराध होगा तो कोई नहीं रोक सकता। कई मामले चलते हुए, कई लोग अभी भी चुनाव में हैं, मंत्री हैं, कहीं किसी राज्यों में कुछ काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हैं, हम उससे तुलना नहीं कर रहे। लेकिन ये जो मामले थे, जो राजनीतिक आंदोलन के कारण जो पाटीदार समुदाय के खिलाफ हुए थे, वो उसकी एक कानूनी प्रक्रिया अपना के अदालत में जैसे देता है ना प्रशासकीय, उस पर पुलिस की तरफ से पूरी एक रिकॉर्ड दे करके और उनको वापस लिया जा सकता है चूँकि मांग की गई है। और उसी तरह हाँ, जिन परिवारों का निधन हुआ, देखिए ऐसे किसी आंदोलन में जो जनता की आवाज़ उठाने के लिए होते हैं, उनमें लोग जब जिनकी कोई जिसके कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार पूरा प्रभावित होता है। पहले भी कुछ सहायता दी गई होगी और अभी उसकी जो भी कमी होगी, निश्चित रूप से सरकार बहुत ही सहानुभूति के साथ उनकी मदद करेगी। इसलिए नहीं कि चुनाव है, मुझे तो जहाँ तक जानकारी है कि उनके लिए पहले भी सहायता का कुछ व्यवस्था की गई और जो नहीं हो पाई है उनको सबको जल्दी जल्दी करने का पूरा प्रयास सरकार ज़रूर करेगी। वो नहीं करेगी तो नुकसान होता ही है। भाई देखिए, आप जिस समुदाय से 14-15% वोट लेना चाहते हैं, उस समुदाय की बातें यदि नहीं सुनेंगे जो जुनैन है, भाई वो कोई ऐसी डिमांड किसान आंदोलन से अननेसरी जो डिमांड कर रहे थे, उस तरह की डिमांड जिसमें खालिस्तानी पीछे लगा हुआ हो, गुजरात के लोगों ने तो उस तरह के आंदोलन वहाँ पर नहीं किया कुछ भी। इस तरह से तो इस आंदोलन में जो लोग ऐसे मामलों में आए थे, उनको उदारतापूर्वक और ख़ास करके जो परिवारों में किसी का निधन हुआ था, मृत्यु हो गई थी, उनके परिवारों को निश्चित रूप से सरकार सहायता करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आलोक सर, आपको आखिरी सवाल पूछूंगा कि जिस तरह से हार्दिक पटेल का भाजपा में आना, ऐसे ही कई पाटीदार नेता है जो भाजपा में शामिल होने की इच्छा रखते हैं, तो आने वाले दिनों में ऐसे लोगों को भाजपा के फोल्ड में लाने की रणनीति भी बनाई है भाजपा ने, तो इससे फायदा क्या होगा भाजपा को? देखिए, भाजपा तो कहती है भाई पूरा देश, जैसे हम सबको हिंदू मानते हैं, जो भारत में पैदा हुआ है उनको सबको हिंदू मानते हैं, उसी तरह से जो भाजपा की नीतियों को स्वीकार करे तो पटेल समुदाय के लोग हार्दिक पटेल के साथ। लेकिन एक बात मुझे जो लगता है, ऐसा नहीं होगा कि दरवाजे इतना खोल दीजिए कि जो कोई अपराधी किस्म का कोई का हो, किसी पर कोई गंभीर आरोप हो, समाज में उसकी छवि खराब हो, चूँकि वो पटेल समुदाय, उसका नाम लिखा है, मेहता लिखा हुआ है, तो उनको ले लेंगे। मेरा मानना है कि देखिए, हम और आप जो भी किसी भी समुदाय से हों, यदि उसकी छवि खराब होगी, उसके लिए ऐसा, जैसे कहते हैं पानी की सबको ज़रूरत होती है, लेकिन बाढ़ की ज़रूरत नहीं होती है कि पानी में घर में ही सब सारा आपका टेबल कुर्सी किचन में भर जाए। पानी हम अपेक्षा करते हैं कि बारिश होना चाहिए, मानसून आने आए, शुरू हो रहा है, गुजरात में भी बारिश होगी, लेकिन ये नहीं चाहेंगे कि बाढ़ जैसा आ जाए।
तो पार्टी में जो आना चाहते हैं उनका स्वागत होगा, लेकिन कांटे से तोल के उनके चरित्र को, उनके स्वभाव को, उनके काम को, उनकी उपयोगिता को, उनके समर्पण को, उनको ध्यान में रखकर लेंगे। सबको नहीं लेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कई लोग जो बैठे हैं उनको नहीं लिया गया है पहले भी और अभी भी नहीं लिया जाएगा। न केवल गुजरात बल्कि और अन्य राज्यों में भी जहाँ भी चुनाव होते हैं या नहीं होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर मुझे जानकारी है कई ऐसे विवादास्पद नेता हैं, वो कहते हैं शायद हमारे केस खत्म हो जाए, हमको ले लें। लेकिन बीजेपी कहती है हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि उनको ले लेंगे तो हम उनको बचाने के कैसे करेंगे, वो तो हमारा ही मुंह पर काले खोद देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे, वो केवल एक ही क्राइटेरिया होगा कि हाँ ज़्यादा लोग आते हैं, यदि क्लीन छवि वाले हैं, समाज में अच्छी छवि है, उनको ले लेंगे। जरूर। आलोक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और डिस्कशन किया। हालांकि 3 और गेस्ट थे हमारे साथ, लेकिन ટેકનિકલ ફોલ્ટ की वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ सके। तो દર્શકો, તો જે રીતે હાર્દિક પટેલનું ભાજપમાં આગમન થયું, ભાજપે એનું હાર્દિક સ્વાગત કર્યું અને કેસરીઓ ખેસ પહેરાવ્યો, કેસરી ટોપી પહેરાવી અને ભાજપમાં સમાવેશ કરી લીધો છે, ત્યારે આવનારા સમયમાં 2022માં જ્યારે ચૂંટણી યોજાવાની છે ત્યારે ભાજપની રણનીતિ પાટીદારોને રીઝવવાની છે અને આના જ ભાગરૂપે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ છેલ્લા 3 મહિનામાં પાટીદાર સમાજમાં જે પાટીદાર સમાજના જે અલગ અલગ કાર્યક્રમો થયા એમાં ઓછામાં ઓછા 1.5 ડઝન જેટલા કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપીને સંબોધન કર્યું છે। ત્યારે ચોક્કસ એવું કહી શકાય કે 2022ની ચૂંટણી ખૂબ જ રસપ્રદ બનશે। હાર્દિક પટેલનું ભાજપમાં આવવું અને તેના કારણે ભાજપને પાટીદાર સમુદાયની જે પાટીદારના ગઢ ગણાય છે, પાટીદારનું વર્ચસ્વવાળી જે બેઠકો છે તે બેઠકો પર ફાયદો થવો। આમ આદમી પાર્ટીને કોંગ્રેસનું શું થશે એ તો સમય કહેશે, પરંતુ એ લોકોની પણ કંઈક અલગ રણનીતિ હોઈ શકે છે। ત્યારે આવનારા સમયમાં 2022ના અંતમાં જ્યારે ચૂંટણી થવાની છે ત્યારે આ વખતની ચૂંટણી ખૂબ જ રસપ્રદ બનશે। હા, એક વસ્તુ ચોક્કસ કે હાર્દિક પટેલને ભાજપ આ વખતે ચૂંટણી લડાવશે કે કેમ એક સવાલ છે, પરંતુ એવું જાણવા મળી રહ્યું છે કે હાર્દિક પટેલને 2022માં વિરમગામની બેઠક પરથી ચૂંટણી લડાવવા માટેની રણનીતિ બનાવવામાં આવી છે। ત્યારે હવે જોવું એ રહ્યું કે આ જે ઇલેક્શન થવાનું છે, ઇલેક્શનમાં હાર્દિક પટેલ કઈ રીતે બહાર આવે છે, મેદાનમાં ધારાસભ્ય તરીકે આવે છે અને પાટીદારોના જે પાટીદાર અનામત આંદોલનના જે માગણી છે સમિતિની, એ માગણીઓને કેવી રીતે સ્વીકાર કરાવે છે ભાજપમાં જ્યારે જોડાઈ ચૂક્યા છે, ત્યારે એ આવનારો સમય કહેશે। દર્શક મિત્રો, ચર્ચાની રેણમાં અત્યારે બસ આટલું જ। વધુ સમાચાર અને અપડેટ્સ માટે જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, ગુજરાતી ધડકન। નમસ્કાર। ભૂપેન્દ્રભાઈ રજનીકાંત પટેલ